how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study spoilage and preservation of food. We already know foods get spoiled or rotten when left unattended for a long time. We will know what is food spoilage, what is food preservation, what are the different methods of food preservation. We often see that the food which has been kept out for a long smell foul and look rotten. What causes this? What will happen if we eat this food? Is it edible? Let's find out more about food spoilage. Okay, देखिए, अगर आपने देखा होगा कि अगर एक खाने को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आप बाहर रख देते हो, छोड़ देते हो, ऐसा खाना थोड़े टाइम के बाद कैसा दिखता है, क्या वो खाना सही होता है या ख़राब हो जाता है, क्या वो खाने लायक होता है, अगर आपने ऐसा खाना खा लिया तो क्या होगा। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड। Food gets spoiled when it is left unattended for some time. Bacteria from the air land on the food and begin to grow. This causes an unpleasant smell and bad taste. The food discolors and becomes dangerous to eat. Okay, देखिए, अगर आपने लंबे टाइम तक फूड को बाहर रख दिया अनअटेंडेड, ओके, तो जितने भी बैक्टीरियाज एयर में प्रेजेंट होते हैं वो उस पर चले जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी स्मेल बुरी हो जाएगी, उसका टेस्ट बुरा हो जाएगा, और अगर ऐसा फूड आपने खा लिया तो आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। ओके, नाउ फूड spoils quickly in damp areas rather than in dry areas. It gets spoiled by the attack of microorganisms like bacteria and fungi. Microorganisms require air, water and warmth to grow. Spoiled food gives birth to many diseases which are very harmful to us. देखिए, अब जो फूड स्पॉयल है वो ड्राई एरियाज में जल्दी नहीं होता, लेकिन जहाँ पे गार्बेज डंप किया जाता है ऐसे एरियाज़ में जल्दी हो जाता है। ओके, नाउ इस टाइप के जो फूड होते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एयर, वाटर, वार्मथ की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन with naked eyes. You can only see them with a microscope. The microorganisms that cause diseases are called germs. Okay, देखिए, microorganisms जो होते हैं बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली आप ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये डिजीज़ और जर्म्स फैलाते हैं, ओके, बनाते हैं। साइंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड। The common sign of spoiled food are as follows: change in color of food, foul smell, sour taste, stickiness and sliminess on the food. देखिए क्या क्या साइन है जिससे हमें ये पता चले कि जो फूड है वो ख़राब हो चुका है। उसके कलर चेंज हो जाएगा, उससे स्मेल आएगी, उसका टेस्ट बहुत ही गंदा आएगा। ओके, उसमें स्टिकीनेस और काफ़ी ज़्यादा स्लिमीनेस दिखाई देगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। Food is precious and should not be wasted. It should be preserved. Food can be prevented from getting spoiled by preserving it properly. It is the process of treating and handling food to stop or slow down food spoilage. Food preservation is the process by which food is stored for a long time. देखिए, फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है, क्योंकि फूड को ग्रो कौन करता है? फार्मर्स, और उन्हें उसे ग्रो करने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फूड बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है, उसे कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए। तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे फूड प्रोसेस बोलते हैं। ओके, फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। नाउ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। Various methods are adopted to preserve food items. These methods protect the food from germs that spoil it. They remove the air, moisture and warmth that allow germs to thrive. Food preservation also reduces the bulk of food. For example, it is easier to transport a kilogram of tomato puree than a kilogram of fresh tomatoes. Let us read about the different methods of food preservation. Okay, देखिए, बहुत सारे methods होते हैं जिन्हें हम adopt कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, देखिए, फूड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है जर्म से या स्पॉइल होने से। अब
एयर में अगर मॉइस्चर हटा दिया जाए, वार्मथ रख दी जाए और जर्म्स को अलाउ ना किया जाए तो ये इजीली प्रिजर्व किए जा सकते हैं। जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन, अगर आप किसी कंटेनर में बंद करके रखेंगे तो फूड प्रिजर्व्ड है। जैसे कि अब 1 किलो टोमेटो लगा लीजिए, कितने भी किलोस टोमेटोज लगा लीजिए, उसको आप लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व नहीं करके रख सकते। लेकिन अगर टोमेटो प्योरे है उसे आप लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, इस तरीके से फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ओके, बॉइलिंग, boiling kills germs. Milk is boiled to kill germs. Water is also boiled at high temperature for 10 to 15 minutes to make it safe for drinking. Boiling क्या है? Boiling एक मेथड है जिससे फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। बॉइलिंग से क्या होता है, जो जर्म्स हो जाते हैं वो मर जाते हैं। तो मिल्क को बॉयल किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए, वहीं सेफ ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए आप वाटर को 10 to 15 मिनट्स पर तक आप बॉयल करते हैं ताकि उसे आप पी सके, वो सेफ रहे। ओके, इम्प्योर ना हो। Freezing. Freezing is the food lowers the temperature to the level that makes the environment unsuitable for microbial growth. Hence, keeping food in the refrigerator or a deep freezer keeps it fresh for a longer time and prevents it from getting spoiled. Okay, देखिए freezing क्या होता है? freezing जो होता है उसमें काफ़ी लो टेम्परेचर हो जाता है जहाँ पे माइक्रोब्स जो होते हैं वो एंटर इजीली नहीं कर सकते हैं। तो इस टेम्परेचर पे अगर हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को रखें तो इससे वो ज़्यादा टाइम तक सेफ रह सकते हैं और ख़राब नहीं होंगे। ओके, ड्राइंग, it helps to remove the water content moisture in the food and prevents bacteria growth. Wheat, apples, pulses, maize, rice, oats etc. are preserved in this way. देखिए ड्राइंग मतलब कि अगर आप सन रेज के नीचे कोई चीज़ को रखेंगे, प्रॉपरली ड्राई करके रखेंगे, तो जितने भी जो वाटर, जो मॉइस्चर उसमें होता है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है, तो उस चीज़ से वो प्रिवेंट होता है। ओके, उससे ये सारी चीज़ें ग्रो नहीं करती है। जैसे कि वाटर, वीट हो गया, एप्पल, पल्सेस, मेज, राइस, ओट्स, इन सारी चीज़ों को इसी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। ओके, canning and bottling. Food is also preserved by canning and bottling. This method involves heating the food to kill germs. After the preservation are added to it, the food items are stored in cans or bottles. देखिए कैनिंग और बोटलिंग ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हीट किया जाता है जिसके थ्रू फूड में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, नाउ इस प्रिजर्वेशन को ऐड किया जाता है। अब जैसे ये हीट कर दिया गया है उसके बाद ये जो फूड आइटम्स है ये स्टोर कर दिए जाते हैं कैन्स या फिर बॉटल्स में। ओके, प्रिजर्वेटिव्स और पिकलिंग। Commonly used preservatives are salt, sugar, vegetable oil and vinegar. Preserving food properly prevent it from spoilage and hence it does not get wasted. Certain chemicals are used as preservatives in soft drinks and sauces. Okay, देखिए कॉमनली प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल है, विनेगर है, ये यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होता है। काफ़ी सारे केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और सॉसेस को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, There are some techniques used to preserve food, but not wasting food. We can provide food to many who suffer from hunger and starvation. देखिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और अगर आपके पास फूड ज़्यादा है घर में तो आपको उसको वेस्ट नहीं करना है, इंस्टेड किसी को दे दीजिए जो भूखा है या फिर स्टार्व कर रहा है। ओके, नाउ पोस्ट डू Ask your mother, grandmother and write down the recipe of preparing a pickle. Find out the preservatives to be added. ये आप खुद से करेंगे। Let's know. The French scientist Louis Pasteur developed a good method of preserving milk. This method is called pasteurization after his name. In this method, milk is boiled for some time to kill the bacteria present in it and then cooled quickly to prevent the remaining bacteria from growing. This milk is then filled into sterilized bottles and pouches. Okay, देखिए एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम लुइस पैस्च्योर था और उनके नाम पर ही मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसका नाम था पैस्च्योराइजेशन। ओके, नाउ इस मेथड में क्या है, मिल्क को बॉयल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा हीट पर और उसके बाद उसको क्विकली ठंडा किया जाता है और उसके बाद उसको एक कंटेनर में रख दिया जाता है। वेस्टेज ऑफ फूड। मिलियंस ऑफ आवर फेलो बीइंग्स आर डाइंग इन हंगर व्हेन मिलियंस ऑफ टन्स of food is being thrown away, wasted, discarded, whatever, or for no good reason most of the times. Wasting food is not good
for anyone in any way to the economy or to the environment। देखिए हमारे जो फेलोज मतलब कि हमारे आसपास रहने वाले काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी वो स्टार्व कर रहे हैं। आपको पता है किसी ना किसी कोने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो भूखे सोते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, ना पैसे होते हैं ख़रीदने के लिए खाना। ओके, अब काफ़ी सारे लोग ऐसे जो भूखे सोते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारा फूड ऐसा है जो वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वेस्टेज ऑफ फूड है, ये गार्बेज में जा रहा है। क्या है ये? फूड ही तो वेस्ट हो रहा है ना बेटा। तो इसको हमें इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए फूड की क्या होती है। ओके, नाउ वी शुड ईट फूड टू आवर एपेटाइट। दिस इज वी शुड ओनली eat as much as we can feel convenient. The amount of food that we take in our plates should not be more than what we can eat. Our eating capacity is limited, so we should take only that much of food. When we take more food in our plates than we can eat, we leave it uneaten. This food is wasted. Wasting food is a bad manner also. We must be careful about it. Okay, देखिए हमें अपने एपेटाइट मतलब कि आपको जितनी भूख है, जितना आप खाते हैं उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए, उससे ज़्यादा खाना नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाना ले लेते हैं तो आप जितना खाते हैं उससे आपका पेट भर जाता है, और जो खाना बच जाता है वो क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। और आपको खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए, ये एक बैड मैनर होता है। ओके, तो आपको इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। फूड प्रिजर्व्ड और सेव्ड इज़ फूड प्रोड्यूस्ड। फूड इज़ प्रेशियस। ठीक है, फूड को अगर आप प्रिजर्व करके रखते हो या सेव करके रखते हो तो फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो फूड क्या है? प्रेशियस है। ओके, पोज टू डू। Several people around us sleep empty stomach when we are partying and wasting food. Sever the excess of theft leftover food. These needy and hunger people earn a blessing. Value food. ये आप खुद से करेंगे। Sum up. Food gets spoiled when it is left unattended for some time. Food preservation is the process by which food is stored for a long time. Boiling kills germs. Milk is boiled to kill germs. Freezing the food lowers the temperature to the level that makes the environment unsuitable for the microbial growth. Commonly used preservatives are salt, sugar, vegetable oil and vinegar. Wasting food is not good for anyone in any way to the economy and to the environment. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।